اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اور اہم اپیل اور اعلان ہے کہ آج وقف قانون جو ایک کالا ناپاک ترمیمی قانون شرارتی اور بدماش سرکار نے لایا ہے، اوقاف کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کے لیے جو ناپاک نیت نریندر مودی اور سرکار کی ہے، اس کالے قانون کے خلاف آج پورے ملک میں ملک گیر پیمانے پر پورے بھارت میں مسلمانوں نے بتی گل احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ یعنی آج آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جو اس مدعے کو لیڈ کر رہی ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ پلیز آج رات 9 بجے سے لے کر 9:15 یعنی 15 منٹ تک اپنے گھر، اپنے دکان، اپنے مکان، ہر طرف کی لائٹ بند رکھے، بتی گل رکھے۔ یہ ایک قسم کا احتجاج ہے، آندولن ہے، نریندر مودی کو بتانا ہے اور ظالم سرکار کو اور سپریم کورٹ کو بھی بتانا ہے کہ یہ جو کالا قانون بھارت سرکار نے لائی ہے یہ انتہائی ناپاک قانون ہے، سنویدھان کے خلاف ہے، غیر دستوری، غیر آئینی ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس، ہمارے بنیادی حقوق کو چھیننے والا یہ کالا قانون ہے۔ ہم اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور پورے ہندوستان میں لائٹ بن آف، بتی گل، یہ شانتتا پورو انداز میں ہم آج احتجاج کریں گے، آندولن کریں گے۔ مسلم پرسنل بورڈ نے اپیل کی ہے کہ آج رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک بتی بند رکھیں۔ میں مردوں سے کہوں گا کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی وقف کے بارے میں بتائے کہ وقف کا کالا قانون کس طریقے سے نریندر مودی نے بنایا ہے، لایا ہے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کی درگاہوں، خانقاہوں، مسجدوں اور ایسے ہی قبرستان کی زمینوں پر بی جے پی سرکار قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ کروڑوں اربوں روپے کی زمینوں پر ان کے ناپاک شیطانی نیت ہے، اس لیے ہم یہ آندولن کر رہے ہیں، اور جب تک کہ یہ کالا قانون رد نہیں ہوتا ہم لگاتار آندولن کرتے رہیں گے۔ وقت پڑا، اگر ہمارے بڑوں نے اشارہ کیے تو ہم جیل بھرو آندولن بھی کریں گے، اور وقت پڑا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ اور شہادت بھی پیش کریں گے، لیکن اللہ کی جائیداد جسے وقف کہتے ہیں اس کو کسی کے حلق میں جانے نہیں دیں گے۔ اس کی حفاظت کرنا آپ کی، میری، ہم سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل اللہ کے دربار میں ہم سب کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلگام میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، آتنکوادی حملہ ہوا ہے، اس کو لے کر وزیر اعظم نے گزشتہ کل تینوں فوج
यानी ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी तीनों फौज के सरबराहों की, जिम्मेदारों की आला सतही मीटिंग ली और कहा कि टारगेट, वक्त और तरीक़ा तय करने के लिए हम फौज को खुली छूट देते हैं। यानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौज को ये इख्तियार दे दिया है कि वो जंग का फैसला करे, यानी फौज जो करना चाहेगी। मोदी जी ने ग्रीन सिग्नल दिखाया है कि आप जो करना चाहें कर सकते हैं। आप जंग का ऐलान करते हैं, जंग होगी, या आप कोई दूसरा तरीक़ा कार इख्तियार करते हैं तो वो होगा। यानी वज़ीर आज़म मोदी ने फौज को जिम्मेदार बनाया है। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर से हमारे रिपोर्टर मौलाना हबीबुर रहमान ने बताया कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले के बाद जम्मू एंड कश्मीर में 50 टूरिस्ट पैलेस यानी 50 सियाहती मकामात को बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियों की सिफारिश पर इंतजामिया ने यह बड़ा फैसला लिया है और मजीद मकामात भी बंद हो सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। यानी जम्मू और कश्मीर के लोगों की जो रोजी रोटी और ज़रिए माश सियाहत पर और टूरिज़्म पर टिका हुआ है, अब इस पर बड़ा गहरा असर देखने को मिल सकता है। होटल कंपनी खोलने और फल का कारोबार करने का इरादा रखने वाले सरमायाकारों के एतमाद की कमी देखी जा सकती है। यानी वहाँ का आम आदमी, आम शहरी फ़लस्तीन का परेशान है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वक्फ तरमीमी एक्ट, यानी ये जो कानून बना है, वक्फ का जो काला कानून तरमीम करके अमेंडमेंट करके लाया गया है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां दाखिल हुई है इसके विरुद्ध में। लेकिन खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब नई अर्जियों पर सुनवाई करने से, समाअत करने से इनकार कर दिया। जेर समाअत 5 दरखास्तों को ही सुप्रीम कोर्ट ने तरजीह दी है, लिहाजा अब मजीद अर्जियां कबूल नहीं की जाएंगी। नाज़रीन, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सोमरा और नईम भाई संजानवाला, गुजराती रिपोर्टर ने बताया कि अहमदाबाद में चंदोला झील के पास जो झोपड़पट्टी और बस्ती पूरी की पूरी थी, उस बस्ती पर बुलडोज़र चला दिया गया। 800 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जा रहा है कि गैर कानूनी बांग्लादेशियों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद मुल्क की कई रियासतों की पुलिस गैर कानूनी पनागजीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। हाल ही में गुजरात पुलिस ने सूरत, वलसाड़, वापी और अहमदाबाद से 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया था। वहीं अब पुलिस ने चंदोला झील के पास बनी बांग्लादेशी बस्ती पर भी कार्रवाई की है। नाज़रीन, हज 2025 का पहला काफिला मुंबई से, लखनऊ और हैदराबाद से रवाना हो गया और गुज़िश्ता कल मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उनका शानदार अंदाज में सऊदी ममलकत सऊदी अरब की जानिब से गुल देकर, गुलदस्ते देकर और खजूर और जमजम पिलाकर उनका इस्तकबाल किया गया। यानी हिंदुस्तानी आज़मीन हज का पहला काफिला सऊदी अरब पहुंच गया है। मुंबई से 433, लखनऊ से 288 और हैदराबाद से 262 मुसाफिरों को लेकर पहला काफिला सऊदी पहुंच गया है। वहां पर उनका इस्तकबाल हुआ और उनसे कहा गया कि आप सब इंतहाई खुशनसीब हैं जिन्हें रब्बे करीम ने अपने घर का मेहमान बनने का शर्फ बख्शा है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर रियासत महाराष्ट्र की आ रही है। जी हाँ, नायब वजीर आला अजीत दादा पवार यानी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने गुज़िश्ता कल एक मीटिंग ली। इसमें यह कहा कि हुकूमत यानी महाराष्ट्र सरकार रियासती वक्फ बोर्ड यानी महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को बाइख्तियार और मुस्तहकम मजबूत बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार संजीदा है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के तालीमी, तिब्बी और इक्तिसादी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। इजलास में जो मीटिंग ली गई उसमें वक्फ जायदाद का तहफ़्फ़ुज़,
फंड्स का सही शफाफ इस्तेमाल, तालीमी इदारों को कायम करना और नौजवानों की तरबियत और अक़लियतों की तरक्की से मुताल्लिक अहम फैसले लिए गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त कोई भी कदम वक्फ को लेकर सरकार जो उठाएगी, क्योंकि अजीत दादा पवार भी बीजेपी की गोद में बैठे हैं, इसलिए कोई भी कदम महाराष्ट्र के मुसलमानों को और अच्छे सेकुलर सच्चे भारतीयों को, हिंदुओं को भी, ये जो नया कानून आया है ये एक नापाक कानून है और इस नापाक कानून के जरिए से वक्फ बोर्ड को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड को लूट मार करने का रास्ता और ज्यादा आसान किया जा रहा है। इसलिए अजीत दादा पवार से तमाम मुसलमान नाराजगी का इजहार करते हुए कह रहे कि अजीत दादा पवार, आपको वक्फ बोर्ड के बारे में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस ये जो तरमीम, अगर सच्ची में आप वक्फ बोर्ड और मुसलमानों के शुभ चिंतक है, खैर खा है, तो ये जो तरमीम कानून आया है इसको रद्द कर दो तो हम समझेंगे कि तुम मुसलमानों के खैर खा हो। नाज़रीन, देवबंद से बड़ी खबर आ रही है, सहारनपुर जिले से। जी हाँ, शेखुल हदीस मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर, एक बुजुर्ग जय्यद आलिम दीन आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल साहब का 2 दिन पहले इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दीनी और इल्मी हलकों में गम की लहर है। हजारों सोगवारों की मौजूदगी में उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जामिया मज़ाहिरुल उलूम जदीद सहारनपुर के नाज़िम आला और शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद की मजलिस शूरा के रुकन मुहद्दिस कबीर हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल साहब लंबी तवील अलालत के बाद पीर के दिन यानी 29 शव्वाल 28 अप्रैल 2025 को इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नमाज जनाजा मगरिब के बाद ताहिर गार्डन डिफेंसेस कॉलोनी के करीब आबाई कब्रिस्तान में अदा की गई और हजारों सोगवारों की मौजूदगी में तदफीन अमल में आई। मैं आपको बता दूं कि हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद आकिल साहब 15 अक्टूबर 1937 को पैदा हुए। कुरान मजीद का हिफ्ज 1950 में मुकम्मल किया और फिर जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर से आला दीनी तालीम हासिल की और 1961 में दौरे हदीस से फरागत के बाद तदरीसी खिदमात को अंजाम देना शुरू किया और उम्र के आखिर हिस्से तक आप शेखुल हदीस रहे, यानी हदीस का दर्स देते रहे। अल्लाह आप मरहूम की मग़फ़िरत फरमाएं, आपके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाएं और जो कुछ भी आपने दीनी इल्मी खिदमत अंजाम दी है अल्लाह उसका बेहतर सिला बेहतर बदला आपको नसीब फरमाएं, आमीन। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर आ रही कि महाराष्ट्र कैबिनेट, महाराष्ट्र काबीना की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें 11 बड़े बड़े फैसले लिए गए। बताया जा रहा है कि फसल इंश्योरेंस स्कीम में तब्दीली, दूसरे कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टोल माफी और तीसरे पहलगाम में मरने वाले महलूकीन के वारिसों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के हर खानदान के लिए 50 लाख रुपए के माली इमदाद पैकेज का ऐलान किया है, जिसने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले में अपने प्यारों को खो दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी जोरदार अंदाज में वायरल हुई कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार के काफिले पर हमला हो गया, खतरनाक हमला हो गया। जी हाँ, लेकिन वो हमला इंसानों ने नहीं, शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और वो हमला इतना खतरनाक रहा कि बड़ी मुश्किल से अजीत दादा पवार को वहां से निकाला गया, लेकिन कुछ पुलिस एहलकारों को मक्खियों ने डंक मारकर जख्मी कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब अजीत दादा पवार जिला रत्नागिरी के संगमेश्वर के दौरे पर थे। ये वाकया संगम मंदिर के इलाके में पेश आया जब वो कस्बा गांव में सर देसाई वाड़ा का मुआयना कर रहे थे कि शहद की मक्खियों के अचानक हमले की वजह से काफिले में शामिल बहुत से लोग तेजी से बिखर गए। नायब वज़ीर आला अजीत पवार को बहिफाजत गाड़ी में बिठाया गया।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बीक्वेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया भाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।